Welcome once again. एक बार फिर से स्वागत है। Let's worship the Lord for some time क्यों ना हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें and go into His Word. और उसके वचन में हम जाएंगे। Trust you're doing well. और हम विश्वास करते हैं, हमें भरोसा है कि आप स्वस्थ हैं। Amen. God's grace is enough for us. परमेश्वर का अनुग्रह प्रिय हमारे लिए काफी है। Amen. आमेन। As thy days, so shall thy strength be. जैसे तेरे दिन होंगे वैसे ही तेरा बल भी होगा। Amen. आमेन। Sing the song, chorus. उस कोरस को हम गाएंगे। Heaven is a wonderful place. स्वर्ग एक खूबसूरत जगह है। Amen. आमेन। Read the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब को जब हम पढ़ें, Just the closing chapters, you get a little glimpse of heaven, what it is like. उसके आखिरी अध्यायों में हमें एक झलक मिलती है कि वो स्वर्ग क्या ही खूबसूरत जगह है। And Paul says, I saw things that I am unable to utter. पौलुस भी लिखता है कि मैंने ऐसी चीजों को देखा जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। So glorious, so powerful, so wonderful. इतना महिमामय, इतना अद्भुत दृश्य था। Amen. आमेन। Heaven is a wonderful place, filled with the glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful place, filled with the glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. When we get to heaven, gonna walk with Jesus. When we get to heaven, gonna see His face. When we get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by His wonderful grace, because I'm saved, saved, wonderfully saved, washed in the blood of the Lamb. Saved, saved, wonderfully saved. I'm so glad I am. Hallelujah. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Oh, when we get to heaven, gonna walk with Jesus. When we get to heaven, gonna see His face. When we get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by His wonderful grace, because I'm saved, saved, wonderfully saved, washed in the blood of the Lamb. Saved, saved, wonderfully saved. I'm so glad I am. Hallelujah. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. When we get to heaven, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, the songwriter is saying we walk with Him. ये गीत का लेखक तो कहता है हम उसके साथ चलेंगे। We begin a walk here. हम उस चलने को प्रभु के साथ यहीं पर शुरू करते हैं। Amen. आमेन। Like Enoch, keep on walking. जैसे हनोक परमेश्वर के संग संग चलता रहा And he was not found, God took him away. और फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो मिला नहीं, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। Hallelujah. Sing one song in Hindi. हिंदी में गीत को हम गाएंगे। This service is both in English and Hindi. ये सभाएं जो है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है। So sometimes you might sing more of Hindi and less of English. और कभी ऐसा हो जाता है कि हम हिंदी के गीत को ज़्यादा या इंग्लिश के कम, या इस प्रकार हो जाता है, Or vice versa. या दूसरे तरीके से हो जाता है More of English and less of Hindi. कि इंग्लिश ज़्यादा हिंदी कम, ऐसा भी हो जाता है। Wait for both. The word is in both. लेकिन इनके जो बोल है सभी भाषाओं में हमें मिल जाएंगे। When we preach the word, it is in both in English and Hindi. जो वचन हम प्रचार करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वो आपको सुनने मिलेगा। Amen.
Sing this song. पीछे यीशु के चलूंगा एक चाहे दुख में रास्ता हो. एक गीत कहता है, पीछे यीशु के चलूंगा चाहे दुख में रास्ता हो. पीछे यीशु के चलूंगा चाहे दुख में रास्ता हो. वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, तेरी खुशी से चलूंगा जहाँ गए उसके कदम. जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम. इसलिए मैं पूछता नहीं रब कहाँ ले जाता है. झिझकूंगा ना कभी, यीशु राह दिखाता है. हुकुम मानकर उसके पीछे चलूंगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए. दुनिया अगर मुझे लुभाए फानी चीजों से यहाँ, और गुनाहों में उलझाए दे तकलीफ मुझे हर आन. कर आजाद मुझे खुदाया रूह और जान और बदन में, ताकि तेरी खिदमत करूं रहूं तेरी मर्जी में. ले खुदावन मेरी मर्जी अपनी मर्जी में छिपा. जब मैं दौड़ में थकूं कभी, मेरी हिम्मत को बढ़ा. मैं भर में तेरे पीछे चलूंगा सदाकत से, तब खुश रहूंगा जलाल में तेरी पाक रिफाकत से. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में. प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में. प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने. कोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है.
सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Yes, Lord, we bless your name. Hallelujah. I will bless the Lord and give him the glory. Oh, I will bless his name and give him the glory. I will bless the Lord and give him the glory. Oh, I will bless his name and give him the glory, and will give the glory. Hallelujah. Sing it. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father, for this morning. पिता आज की सुबह के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। We ask you that you will give us utterance to speak your word. हम तुझसे मांगते कि तू हमें वचन को बोलने की सामर्थ्य दे। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, break the bread of life unto us. जीवन की रोटी आज हमारे लिए तू तोड़ दे। Bless all those who listen. हर एक सुनने वालों को आशीष देना Give us the anointing to speak your word, Lord. और तेरे पवित्र वचन को बोलने का अभिषेक दे। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank the Lord for this wonderful morning. प्रभु का हम धन्यवाद देते आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। Another day the Lord has given to us. एक और दिन परमेश्वर ने हमको दान में दिया है। How gracious and how kind and how loving our God is. क्या ही अनुग्रहकारी, क्या ही प्रेम करने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है।
We are not consumed because His mercy endures forever. हम इसलिए नष्ट नहीं हो गए, उसकी करुणा सदा की है इसलिए प्रियो। What a privilege it is ये क्या ही सौभाग्य की बात है to know Him. उस परमेश्वर को पहचानना। And it's a privilege that He knows us too. और ये एक और सौभाग्य है कि वो परमेश्वर हमें भी जानता है। Oh, we bless His name. वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना में जाएं। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम में we are so grateful to Thee that we are Your children. हम तेरे प्रति धन्यवादित हैं प्रभु कि हम तेरी संतान हैं। Your word says you have chosen us. तेरा वचन हमसे बताता है कि तूने हमें चुना है And we thank you for it. और हम उसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। Ask your blessing on your word. तेरी आशीष को तेरे वचन के ऊपर में मांगते हैं। Give us utterance to speak your word, O God. तेरे वचन को बोलने की हे प्रभु हमें सामर्थ्य दे। May thy anointing rest upon us unabated. तेरा अभिषेक हमारे ऊपर में निरंतर बना रहे। Fill this place with your glory. इस जगह को अपनी महिमा से भर दे। Fill every home with your glory. हर एक घर को अपनी महिमा से भर दे। Bless this word to our hearts, I pray in Jesus' name. ये वचन हमारे हृदय के लिए धन्य कर मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। Amen. Amen. Hallelujah. Good to be back together. एक बार फिर से इस प्रकार साथ में आना आनंद की बात है। It doesn't matter if the church building is closed. ये बहुत मायने नहीं रखती कि इमारत प्रभु का भवन बंद है, The church of Jesus is alive and well. लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया जीवित है और स्वस्थ है। ये महत्वपूर्ण है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Shall we look into God's word in the 14th chapter of John's Gospel? आइए परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 14 अध्याय। We are reading from verse 6. और उसकी 6वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। And Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। If ye had known me, ye should have known my Father also, and from henceforth you know him and have seen him. यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। And Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। Jesus said unto him, Have I been so long time with you, yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou, then show us the Father? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। Amen. How gently, how lovingly the Lord was trying to make his disciples understand. क्या ही नम्रता और प्रेम पूर्वक यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात समझाने का यत्न कर रहा है। No wonder when he said, the words I speak to you, they are spirit in their life. कोई आश्चर्य नहीं जब यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा है और वे जीवन है।
They were so taken up by the word of God. वे परमेश्वर के वचन को लेकर इतने उसमें मामूर हो गए They wanted to know more. कि वो और अधिक जानना चाहते थे, More about Jesus. यीशु मसीह के बारे में और जानना, More about the Father. पिता के बारे में और जानना चाहते, More about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में और अधिक जानना चाहते। We are never through learning in this life इस जीवन में हमारा सीखना का कभी अंत नहीं होता till we are through from this world. जब तक हमारा जीवन का अंत नहीं होता तब तक We keep on learning. हम सीखते और सीखते रहते हैं। God is so infinite, परमेश्वर इतना सीमित है, so big and so mighty. इतना सामर्थी, इतना बलवान है, Take all our life to understand Him. हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी उस प्रभु को समझने में। So the disciples asked Jesus, इसलिए चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, show us the Father हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे, and we will be satisfied. यही हमारे लिए बहुत है। Hallelujah. Amen. आमेन। So Jesus began to tell them, तब यीशु मसीह उनसे कहने लगे, you see the reflection of the Father in me. तुम पिता के प्रतिबिंब को मुझ में देखते हो। You know, we know very little about the fatherhood of God. आप जानते, हम परमेश्वर के पितृत्व के बारे में बहुत कम जानते हैं। Even now, sometimes we get confused. अभी भी कई बार हम उसको लेकर नहीं समझ पाते। We think that God is an angry person sitting there to strike anybody who does wrong. हम परमेश्वर के विषय में सोचते हैं कि वो एक ऐसा प्रभु है जो किसी की गलती की सजा देने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। And when we talk about fatherhood, और जब कभी भी हम पितृत्व के बारे में बात करते हैं, many of our thoughts are not right. हम में से बहुतों का विचार उसको लेकर सही नहीं है, Because we tend to relate our heavenly father with our earthly father. क्योंकि हम उस स्वर्गीय पिता की तुलना इस पृथ्वी के अपने पिता के साथ करके समझने का प्रयास करते हैं। Some have never seen their father. कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने अपने सांसारिक पिता को नहीं देखा है। Some have lost them when they were very young. कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी बड़ी कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। And yet others who had very cruel and rude and crude fathers. और ऐसे भी लोग हैं जिनके जो पिता थे वो बड़े क्रूर और क्रोधी पिता उनको मिले। They were selfish and abusive. और वो स्वार्थी थे और वे मारपीट करने वाले पिता के रूप में उन्होंने उसे देखा। They did not care for the children as a father should care for. और उन्होंने अपने बच्चों का वैसे परवरिश या देखभाल नहीं की जैसे कि एक पिता को करना चाहिए। Nor did they provide their every need. और ऐसा भी नहीं कि वो उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। So we tend to relate all these things to our heavenly father also. और इसीलिए इन स्वर्गीय पिताओं की तुलना हम उस स्वर्गीय इस संसारिक पिता की तुलना हम उस स्वर्गीय पिता से करने लग जाते हैं। Some had the privilege of having good, godly, loving, caring fathers. कुछ ऐसे भी रहे हैं जिनको ये सौभाग्य मिला अच्छे पिता का, भक्ति करने वाले और धार्मिक पिता का। However good an earthly father may be, he is still not perfect. There are many faults and failures in them. एक संसारिक पिता कितना भी अच्छा और भला क्यों ना हो, परंतु उसके अंदर भी कमी और घटी पाई जाती है। But with all their imperfections, we are called to honor our earthly father and mother. लेकिन इन सारी दुर्बलताओं के बावजूद भी
परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अपने संसारिक माता पिता का आदर करें। This is one commandment with a promise. ये एक ऐसी बाइबल में आज्ञा है जिसके साथ एक वायदा जुड़ा हुआ है। So shall you live long on this earth. और वायदा ये है कि तू लंबी उम्र इस पृथ्वी पर जीने पाए। It's not because you are very healthy and did good exercise. और ये इसलिए तू लंबी उम्र नहीं जिएगा क्योंकि तू स्वस्थ रहता और अभ्यास कसरत करता है। That's all right. ये सब ठीक है, But the promise, परंतु वायदा प्रभु का ये है, honor your father and mother. अपने माता पिता का आदर कर, So shall you live long on this earth. ताकि तू इस पृथ्वी पर लंबी उम्र जी सके। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। We have pictured God as a very stern and a serious person. हमने परमेश्वर को एक बहुत ही कठोर परमेश्वर या पिता के रूप में उसका चित्रण किया है। Who never smiles. ऐसा हम सोचते कि ये परमेश्वर मुस्कुराता भी नहीं, But yet, परंतु तो भी when we read the Holy Bible, जब पवित्र बाइबल को हम पढ़ते हैं, we begin to discover हम ये जानने लगते हैं God is not what we thought him to be. कि परमेश्वर वैसा नहीं है जैसा हम उसके बारे में सोच रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, you've seen me doing good works. तुमने मुझको भले कामों को करते देखा You है, have seen me compassionate, gentle, kind, forgiving. तुमने मुझको दयालु, करुणामयी और क्षमा करते हुए देखा है। It's my Father who is in me. ये मेरा पिता है जो मुझ में है। Listen, सुनिए, our Father is a God who gives. हमारा पिता वो परमेश्वर है जो देता है। In James, the first chapter, याकूब की पत्री और उसके पहले अध्याय में 17th verse, it says like this. और उसके 17 आयत में इस प्रकार से लिखा है, Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, in whom is no variableness, neither shadow of turning. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। What a verse. क्या ही वचन है। You know, Jesus said one time, आपको पता है, एक बार यीशु मसीह ने ऐसा कहा, you being earthly know how to give good gifts to your children. तुम संसारिक पिता होकर अपने अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, Rather, you are evil and still you give good gifts. या फिर ये कहें तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज देना जानते हो। Will not your heavenly Father give you the Holy Ghost to them that ask him? फिर क्या तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्या नहीं देगा? He is a giver वो तो देने वाला, तत्पर and he पिता, loves to give. और उसे देना पसंद है। Hallelujah. Amen. We love to give gifts to our children. हमें अपने अपने बच्चों को भेंटे और इनाम देना हमको अच्छा लगता है। I remember one time I was in the market during Christmas time. मुझे याद है, एक समय की बात है, क्रिसमस का मौसम था और मैं बाजार में था। There were people in cars and there were people others doing lot of marketing. वहां पर गाड़ियों में, कार में लोग थे और बहुत भीड़ थी जो वहां पर सामान खरीद रही थी। And I saw one man with his small young child on a cycle. और वहां पर मैंने देखा एक आदमी को साइकिल में आया हुआ था अपने बच्चे को लेकर। He also entered the shoe shop where we were. और जहां पर मैं था, एक जूते की दुकान में, वो आदमी भी अपने बच्चे को साइकिल से उतार कर अंदर लाया। His own shoes were torn. और ये आदमी के खुद के तो जूते जो वो पहना था फटे हुए थे। But he was telling the shopkeeper, give the best one for my son. लेकिन वो आकर दुकानदार से कहता है, ये बच्चे के लिए सबसे अच्छा जूता दिखाओ। Listen friends, सुनिए दोस्तों, that's the heart of an earthly father. ये एक संसार के पिता का दिल है। Have a look into God's own heart. परमेश्वर के स्वयं के दिल को जरा झांक कर देखें। It says there, वहां पर वो कहता है, every perfect gift comes from the Father of lights.
हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। He not only gives to the righteous, वो न केवल धर्मी लोगों को देता, He gives to the unrighteous also. वो तो अधर्मी मनुष्य को भी दे देता है। In Matthew's Gospel, 5th chapter, 44th verse to 48, it says like this. मत्ती 5 और उसके 45 के आगे इस प्रकार से वो कहता है, 44th verse. 44 आयत से, I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. Pray for them that despitefully use you and persecute you. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, That you might be the children of your Father which is in heaven. For he maketh the sun to rise upon the evil and on the good, and sendeth rain on the just and the unjust. जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। 40th verse. 48 आयत, Be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Jesus is saying, look how God works. यीशु मसीह उन लोगों को बता रहे, देखो पिता कैसे काम करता है। He looks down in compassion upon his creation. वो जब नीचे अपनी सृष्टि को देखता तो दया के साथ देखता है, And he's giving rain and sunshine to those who curse him. वो तो सूर्य और मेह उन पर भी बरसाता है जो उसको श्राप देते हैं। They receive from God and worship other things. वे परमेश्वर से सारी भली वस्तुएं प्राप्त करने के बाद भी किसी अन्य वस्तु की उपासना करते हैं। Doesn't it grieve his heart? क्या स्वर्गीय पिता का हृदय खेदित नहीं होता? But when the season comes, he pours rain upon everyone. परंतु जब वक्त आता है तो वो धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर बराबर आशीष बरसा देता He है। maketh the sun rise upon the just and the unjust. वो सूर्य को उदय करता है धर्मी के ऊपर और यहाँ तक कि अधर्मी पर भी। Look at his heart. उसका दिल जरा देखो, You are not devil's creation. आप शैतान के बनाए हुई रचना नहीं है, You are made in the image of God. आप तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हैं। You are his property. आप परमेश्वर की संपत्ति हैं। Devil is in the habit of usurping God's property. शैतान की पहले से आदत रही है परमेश्वर की संपत्ति को हड़प लेना, कब्जा He'll करना। always give you a wrong picture about the God the Father. और उसने हमेशा इस दुनिया के लोगों को उस स्वर्गीय पिता के बारे में एक गलत धारणा दिया है। Anything bad, he will reflect it to God. और कोई भी चीज बुरी हो तो वो परमेश्वर के ऊपर उसको दिखा देता है। And brings about a big question mark in your mind. और आपके मन में एक बड़े सवाल को, प्रश्न को ले आता है। But I want you to look into the heart of God this morning. लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आज सुबह परमेश्वर के वास्तविक दिल को आप देखकर जान लें। In Psalm 103, 13th verse says, भजन 103 और उसका 13 आयत में लिखा हुआ है, 13 and 14. उसका 13 और 14 में, Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। He knoweth our frame, he remembereth we are dust. क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। A father pitieth his children. एक पिता अपने बच्चों पर दया करता है। When the father sees his child struggling, जब कभी कोई इस संसारिक पिता अपने बच्चे को संघर्ष करते देखता है, he has compassion, pity on him. उसे देखकर उसके मन तरस से भर जाता है। He would say, like, I would rather suffer in his place than he suffering. उस पिता का दिल बोलता है, काश ये दुख मुझको लेना पड़ जाता, मेरे बच्चे को नहीं। Like as a father, earthly father pities his children, जिस प्रकार इस दुनिया का पिता अपने बच्चों पर दया करता है, so our heavenly Father pities us. वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हम पर तरस खाता है। He remembereth वो याद करता है they are dust. कि मनुष्य मिट्टी ही है। Hallelujah. हालेलुया।
Not only that, ना केवल वो He knows our every need. वो हमारी सारी जरूरतों को भी जानता है। Matthew's Gospel 6th chapter, मत्ती का सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 8th verse says, और उस 6 की 8वीं आयत कहती है, Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth the things you have need before you ask Him. इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। Imagine, कल्पना करें, your children don't have to come and tell you have to bring rations for the week. आपके बच्चों को कभी आपके पास आकर ये नहीं बोलना पड़ता है कि आप घर के लिए राशन पानी ले आएं। You know their need. आप स्वयं उन बच्चों की जरूरत को पहले ही जानते हैं। Your Father knows तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे बारे में जानता है, every need. तेरी सारी आवश्यकताएं। Verse 32. 32 आयत में लिखा है, For after all these things the Gentiles seek after, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। Seek first God's kingdom. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज की खोज All these things shall be added. तब ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। What things? कौन सी वस्तु? The things the Gentiles are running after. वही वस्तुएं जिनको पाने के लिए अन्य जाति भाग रहे हैं। God knows our need. परमेश्वर अपने बच्चों की जरूरत को जानता है। Hallelujah. हालेलुया। He not only knows, ना केवल वो जानता है, His eyes are on us. उसकी आंखें भी हमारे ऊपर लगी हुई है। Hallelujah. हालेलुया। I love one song. एक गीत मैं पसंद करता हूँ, Why should my heart be troubled? मेरा मन क्यों विचलित हो, His eyes are on the sparrows. जब उस परमेश्वर की आंख एक गौरैये पर रहती है। And I know He watches me. मैं ये भी जानता हूँ उसकी आंख मुझ पर भी है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, Matthew's Gospel 10th chapter, मत्ती के सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में 29th verse onwards. और उसकी 29 आयत से आगे को, Are not two sparrows sold for a farthing, and not one of them shall fall to the ground without the knowledge of your Father? क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकता। For the very hairs of your head are all numbered. तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। Fear not ye therefore, ye are of more value than many sparrows. इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। Hallelujah. Hallelujah. He watches you. उसकी नजर तुझ पर है। Yes. He watches over you. वो तुझ पर अपनी नजर रखा हुआ है। Just think of it. केवल इस बारे में सोचे। As the songwriter says, He knows your name. एक गीत जो कहता है, वो परमेश्वर तेरा नाम जानता है। He knows every thought that crosses your mind. हर एक विचारों को जो तेरे मन से गुजरता है जानता है। He knows every tear that falls. वो हर एक उन आंसुओं को जो तेरे आंख से टपकते हैं जानता है। And He hears you when you call. और जैसे ही तू उसको पुकारता है, वो तेरी आवाज सुन लेता है। If you look into God's heart, यदि हम पिता के दिल को देखने का प्रयास करें, John understood Him. यूहन्ना ने तो उसको समझ लिया, And he wrote in his epistle and said, और उसने अपनी पत्री में लिखकर इस प्रकार बोला, God is love. परमेश्वर प्रेम है। He doesn't have to practice love. उसको प्रेम करने का अभ्यास करने की जरूरत नहीं, He is love. वो स्वयं प्रेम है। For God so loved the world, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया He gave. कि उसने दे दिया। Hallelujah. His only begotten Son,
दिया भी अपने एकलौते बेटे को, that whosoever shall believe on him should not perish, ताकि जो कोई भी उस बेटे पर विश्वास करे वो नाश ना हो, but have everlasting life. परंतु अनंत काल की जिंदगी पाए। And he says, Jesus was teaching his disciples and he said like this, यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे और उसने इस प्रकार से कहा, in that day you shall ask in my name, and I say unto you that I will not pray unto the Father for you. और वो कहता, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा That I will pray to the Father for you. कि मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा, For the Father himself loveth you. क्योंकि पिता स्वयं ही तुमसे प्रेम रखता है। Hallelujah. हालेलुया। Just imagine. कल्पना करें, Jesus saying, why are you afraid? यीशु मसीह कह रहा, तुम डर क्यों रहे हो? He loves you. वो तो पिता तुमसे खुद प्यार करता है, He loves you. वो तुझसे प्यार, Before you could know him and love इससे him. पहले कि तू उस परमेश्वर को जान पाया। Paul writing in Romans 8 chapter 31 and 32 says, पौलुस जब रोम के लोगों को लिख रहा था और उसके 8वें अध्याय में वो लिखता है, 31 and 32nd verse, उसके 31 और 32 आयत में, what shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? He that spared not his son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? God is a giver. परमेश्वर तो देने वाला प्रभु है। Amen. आमीन। He spared not his son for us. उसने अपने इकलौते बेटे को भी हमारे खातिर रोका नहीं। Now why you think he will not give us all things? फिर ऐसा हम क्यों सोचते कि परमेश्वर सब वस्तुएं हमें नहीं देगा? Paul says no, he is for us. पौलुस कह रहा नहीं, वो हमें सब कुछ देगा। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। That's the heart of the Father. ये तो पिता का दिल है। Amen. आमीन। John in his epistle, यूहन्ना first epistle of John, 3rd chapter, 1st verse. अपनी पत्री लिखते हुए पहली पत्री में वो कहता है, पहला अध्याय 3rd chapter, तीसरा अध्याय 1st verse. और उसकी पहली आयत, Behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। Hallelujah. Behold देखो what manner of love पिता ने हमसे कैसा the प्रेम, Father has bestowed upon us, कैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है that we sinners, कि हम doomed people, should be called sons of God. कि हम पापी लोग जो दंड के भागीदार थे, परमेश्वर की संतान कहलाएं। We who were destined to hellfire, हम जो नरक की आग के लिए नियुक्त हो चुके थे, cursed people, श्रापित ठहर गए थे, changed our position उस परमेश्वर ने हमारे स्थान को बदल दिया to be called the sons of God. कि अब हम उसकी संतान कहलाएं। Hallelujah. Behold what manner of love. देखो कैसा प्रेम किया है। Oh my friends, मेरे प्रिय दोस्तों, we can keep on talking for hours about the love of God. हम परमेश्वर पिता के प्यार के बारे में घंटों बात कर सकते हैं। Can we with ink the ocean fill? क्या समुद्र को पूरा स्याही से भर दिया जाए, And were every twig be made a quill?
और यदि इस पृथ्वी के हर एक वृक्ष की डाल कलम बन जाए, and every man a scribe by trade, इस पृथ्वी का हर एक मनुष्य लेखक बन जाए, to write the love of God above, परमेश्वर के प्रेम का बखान उस आसमान में लिखने को, would drain the ocean dry, लिखते लिखते समुद्र की स्याही सूख जाएगी, but the scroll could not contain the whole, though stretched from sky to sky. तो भी उस आसमानी झिल्ली में उसका पूरा वर्णन नहीं समा पाएगा जो आसमान एक छोर से दूसरे छोर तक तना हुआ है। Behold what manner of love. देखो कैसा प्यार। Look at the cross. उस क्रूस की तरफ जरा देखो। What more इससे बढ़कर और क्या, he could have done? इससे बढ़कर और क्या वो कर सकता था। Oh love of God, ओ परमेश्वर का प्यार, so pure and changeless, इतना पवित्र, so measureless and so strong, ओ इतना असीमित, इतना मजबूत, it shall forever endure. वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। The saints of angels and the song. और संतों का और दूतों का हमेशा के लिए गीत बन जाएगा। God is a forgiving Father. वो स्वर्गीय पिता, क्षमा करने वाला पिता है। He is merciful and forgiving. वो करुणामयी और क्षमा करता है। In Matthew 6 chapter 14th verse it says, मत्ती 6 अध्याय में वो कहता है, 14th verse, if we forgive men their trespasses, your Father in heaven will also forgive you. 14 आयत में कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। Then in verse 36 he says, फिर उसी के 36 आयत में वो कहता है, be therefore merciful as your Father in heaven is merciful. इसलिए तुम भी करुणामयी रहो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता करुणामयी है। Jesus is giving a little bit of glimpse of the heart of God's Father. यीशु मसीह परमेश्वर पिता के हृदय की एक झलक हमें दे रहा है। When he was telling the story of the prodigal son, और जब वो उड़ाऊ पुत्र की घटना को बता रहा था, the father has no pleasure for his son leaving the house. और पिता के मन में कोई खुशी नहीं थी कि उसका बेटा घर छोड़कर जा रहा है। And yet he gave him all that he was his, तो भी जो कुछ what he had put in his son's account. उसके भाग में था, वो सब कुछ पिता ने उस लड़के को दे दिया। That's not all. और इतना नहीं, He waited for him every day. उसके जाने के बाद उसके लौटने का रोज वो इंतजार भी करता था। Hallelujah. God is waiting for us. परमेश्वर पिता भी रुका हुआ है। And it says, और वो कह रहा है, Luke's Gospel 15th chapter. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, I think it is in verse 20. और उसकी 20 आयत में, The prodigal son arose and came to his father. But when he was a great way off, his father saw him and had compassion on him and ran and fell on his neck and kissed him. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। Hallelujah. He saw him coming. पिता ने अपने बेटे को लौटते हुए एक दिन देख लिया। He had waited for him to come. वो तो इंतजार करता था उसके लौटने का। His condition is not good now. और His son's condition. उस बेटे की दशा आज अच्छी नहीं दिख रही थी। He's wasted his life. उस लड़के ने अपने जीवन को संसार में बर्बाद कर दिया Wasted his father's property. और पिता ने जो संपत्ति दी थी उसे उड़ा दिया था। You might be in that condition this day. आप भी आज के दिन ऐसे ही कोई परिस्थिति में होंगे। Wasted years. कहते होंगे, इतने साल मैंने बर्बाद कर दिए। Oh, how foolish. ओ मैंने कैसे मूर्खता की। But there is hope. परंतु वहां पर आशा है। Someone's waiting for you. कोई अभी भी आपका राह देख रहा है। That's the father's heart. वो पिता का दिल है।
a sinner returns to God, एक पापी जब लौटता है परमेश्वर के पास, that boy has got confession in his heart. उस लड़के के मन में अपने गलती को लेकर एक अंगीकार है। I will say to my father, I have sinned against heaven and against you. उसने कहा था मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध No और more तेरे worthy विरुद्ध to be called your son. मैंने पाप किया है, तेरा बेटा कहलाने के अब योग्य नहीं। Receive me as one of your servants. मुझको हे पिता अपने घर में एक नौकर के समान, One of those slaves who is outside the wall. एक ऐसा सेवक के रूप में काम दे दे जो घर के बाहर के काम करता At least I get some crumbs from your table. कम से कम मुझे खाने को तेरी मेज से कुछ मिल जाएगा। The son had never expected to be reinstated to that place where he was. उस पुत्र ने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि वो उसी स्थान पे वापस रख दिया जाएगा जो पहले उसका था। It's over now. ओ कहता है अब सब पूरा हो गया। My father I see. मुझको मेरा पिता दिख गया। His hands reaching for me. देखो उसका हाथ कैसा मेरी ओर बढ़ा दौड़ा चला रहा। It's over. मेरे दुखों का अंत हो गया। It says, वो कहता है when he saw him, जब उसने उसको देखा, he had compassion. उसने उसको देख कर तरस खाया। He's a merciful father. वो पिता तो तरस खाने वाला प्रभु है। He had compassion on that fallen man. वो उस गिरे आदमी को देखकर दया करता है। And he ran. और वो दूर था तो दौड़ने लगा Fell on his neck और उसको गले लगाया and kissed him. और बहुत चूमा Said to his servants, rejoice with me. और अपने सेवकों को कहता है आज मेरे साथ खुशी मनाओ। This my son was dead, he's alive. ये मेरा बेटा जो मर गया था अब मैंने उसको जिंदा पाया है। He was lost, he's found. मेरा बेटा जो गुम गया था वापस मिल गया है। Merciful God. तरस खाने वाला परमेश्वर। Paul writing in his epistles would say like this. पौलुस अपनी पत्री लिखते हुए इस प्रकार से बोलता है, To Timothy, my dearly beloved son, grace and mercy and peace from God the Father and of the Lord Jesus Christ. ओ तिमुथियुस के नाम लिखते हुए कहता हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना रहे। He writes to Titus and says the same thing. वो तितुस को लिखते हुए भी वही बात को बोलता है। To Titus, my son, grace and mercy, peace from God the Father. वो अनुग्रह और शांति परमेश्वर का प्रेम तेरी तुझको मिलता रहे। He is saying, look how good God is. और वो बता रहा कि देखो हमारा पिता कितना महान है, Mercy कितना दया करने rejoices वाला, against judgment. जो न्याय के विरुद्ध आनंद करता है। Amen. आमेन। He did not lay our trespasses against us. उसने हमारे दोष के कारण हमको दंडित नहीं किया। Just imagine, we have done wrong, but he's saying it, you are righteous now कल्पना because of my करें son. हमने गलती किया है लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा मेरे बेटे यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। That's the heart of God. ये तो पिता का दिल है। Not only that, ना केवल इतना, he's prepared something for us in eternity. उसने अनंत काल में जब हम जाएंगे वहां भी हमारे लिए कुछ तैयार किया है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said to his disciples, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, Luke 12:32, लूका रचित सुसमाचार 12:32 में, fear not, little flock. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। What are you asking for? आप क्या मांग रहे हैं? We are saying to God, हम परमेश्वर से कह रहे हैं give us a place in heaven, just in some corner. हमको स्वर्ग के कोने में कोई एक जगह दे दे। And he's saying, और वो कह रहा है it's Father's pleasure to give you the kingdom. तुम्हारे पिता को ये बात भाई है कि वो तुम्हें राज्य दे। Hallelujah. To make you and me a ruler. आपको और मुझको एक शासक बनाने को। Paul writing says, पौलुस लिखते हुए बोलता है, eye has not seen nor ear heard. ऐसी बातें उसने रखी है
जिसे न आंखों ने देखा न कानों ने सुना, neither has it entered into the heart of man the things God the Father has prepared for them that love him. न मनुष्य के चित्त में वो बातें चढ़ी है जो पिता ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। There are so many verses we could go through. इतनी बाइबल में पिता के बारे में वचन हैं जो हम देख सकते हैं। Let not your heart be troubled. वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। In my Father's house मेरे पिता के घर में are many mansions. रहने के बहुत से स्थान हैं। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, the end is going to be good. अंत बहुत ही शानदार होने वाला है। A strong angel proclaimed in Revelation and said, प्रकाशित वाक्य में वो प्रधान स्वर्गदूत ललकार के बोलता है, the kingdoms of the world have become the kingdoms of Christ and his God. पृथ्वी के सारे राज्य अब परमेश्वर और उसके पुत्र के हो गए हैं। He is a loving Father, वो तो प्रेम करने वाला पिता है, always ready to listen. हमेशा सुनने को जो तत्पर है। Call on him. उसके नाम को पुकारे। He is merciful. वो दयालु है, His mercy endures forever. उसकी दया सदा की है। Give your life to Christ. अपना जीवन यीशु मसीह को दे दे। If you have never given your life to Jesus, आज तक यदि यीशु मसीह को अपना जिंदगी दिया नहीं, if you have thought God to be some person who doesn't care, आज तक परमेश्वर पिता के बारे में यदि ऐसा सोचा है कि वो कोई ऐसा प्रभु है जो हमारी फिक्र नहीं करता, oh yes, he cares. सुनिए, वो फिक्र करता है। The sun rises in the morning. सूर्य सुबह वो हम पर उदय करता है। Sometimes he shows us the rainbow. कभी कभी वो उस मेघ धनुष को हमें दिखाता है, It reminds us of his mercy. जो हमें याद दिलाती है परमेश्वर की दया को। When you see the rainbow, जब कभी भी उस मेघ धनुष को तू देखेगा, remember God is love. याद रखना परमेश्वर प्यार है। Listen, सुनिए, what shall we give in return for all that he's done? जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है और रखा है, उसके बदले में हमने उसे क्या दिया? He just wants you and nothing else. प्रभु आप पर मुझसे कुछ नहीं चाहता सिवाय हमारे जीवन के, Commit your life to Christ. कि हम अपना जीवन उस प्रभु को समर्पित कर दें। Shall we bow heads and pray? क्यों न अपने सिरों को हम झुकाएं इस समय प्रार्थना में। Jesus' name. Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, you have been so good to us. तू हमारे प्रति इतना भला रहा है। Your mercy, तेरी करुणा, your grace has sustained us. तेरे अनुग्रह ने हमको अब तक संभाला है। Our prayer is keep us faithful to you till the end of time. हमारी प्रार्थना ये है प्रभु कि समय के आखिरी दिन तक हमें तेरे प्रति विश्वास योग्य बनाए रख। Bless your precious people. अपने सुनने वाले इन बहुमूल्य लोगों को आशीष देना। If there is anybody who has never accepted you as a personal savior, यदि इनमें से कोई भी ऐसा है जिसने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जान पाया है, let them know प्रभु आज वो जान ले that you love them too. कि तू उससे भी प्रेम रखता है। However wretched, however weak, however backslidden we might be, कितने भी दुर्दशा में, कितने भी कमजोर हम हों, the Father waits at the door. तो भी पिता दरवाजे में खड़ा राह देखता है For us to return. कि कब हम लौट कर उसके पास वापस आएं। Oh Father, हे पिता, those who are coming back to you, वे जो तेरे पास लौट कर वापस आते हैं, your word says, तेरा वचन उनसे कहता है, him that cometh unto me, I will in no wise cast out. जो मेरे पास आएगा उसे मैं किसी भी रीति से बाहर नहीं करूंगा। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Let us prepare ourselves for the Lord's table. आइए इस समय हम अपने हृदय को प्रभु की ब्यारी के लिए तैयार करें। In your own house, I know. आप अपने ही घर में हैं, मैं इस बात को समझ सकता हूं।
Be in an attitude of prayer. प्रार्थना के भाव में बने रहें। Remember the sacrifice of Jesus on the cross. प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जो उसने क्रूस पर किया है स्मरण रखें। Amen. आमीन। In the same night in which the Lord was betrayed, उसी रात जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, he took bread and broke it, उसने रोटी ली और उसे तोड़ा, gave it to his disciples and said, अपने चेलों को यह कहकर दिया, eat this in remembrance of my broken body. इसे मेरी टूटी हुई देह के स्मरण में तुम खाया करो। Like manner he took the cup, उसी रीति से उसने रोटी के पीछे प्याले को लिया he blessed it and gave it to them, और उसे आशीष दी और अपने चेलों को दिया, said, drink this in remembrance of my shed blood. और कहा, इसे मेरे बहे हुए उस लहू के याद में तुम पिया करो। For as oft as you eat of this bread and drink of this cup, और जब जब तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याले में से पीते, you do remember my death. तुम मेरी मौत को याद करते हो। But let a man examine himself, लेकिन होने दे मनुष्य अपने आप को जांचे, so let him eat of this bread and drink of this cup. और तभी वह इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए। He who eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से इसे खाता या पीता है, अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता प्रभु की देह को ना पहचानने के कारण। Thank you, Lord, for this table. धन्यवाद प्रभु इस मेज के लिए। This bread reminds us of your broken body. ये रोटी जो तेरी टूटी हुई देह का याद हमें दिलाती है, That brought healing to the people. तेरी तोड़ी गई देह लोगों के लिए चंगाई लेकर आती है, And let it be so today also. और आज के दिन भी ऐसा ही होने दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Shall we take the bread आइए इस समय हम रोटी को ले लें and let us partake together और एक साथ आइए हम इसमें सहभागी हों with thanksgiving. धन्यवाद के साथ। Thank you, Lord. We receive what you have given to us. धन्यवाद प्रभु, जो तूने हमें दिया है उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। Likewise, he took the cup. उसी रीति से उसने प्याले को भी लिया, Blessed it. और आशीष दी। Lord, we thank you for this cup, Lord. प्रभु हम इस प्याले के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं, Reminds us of the shed blood of Christ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहे हुए लहू का याद हमें दिलाता है, that cleanses us from all sin. जो हर एक पापों से हमें शुद्ध करता है। We receive it with thanksgiving. धन्यवाद के साथ इसे हम ग्रहण करते हैं। Amen. Let's partake together. आइए हम शामिल हों। Thank you, Lord. Lord, our hearts are filled with thanks to you. प्रभु हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है। You've done great things for us, Lord. तूने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए प्रभु। He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless his holy name. Bless this table to us. प्रभु ये मेज हमारे लिए धन्य ठहरे। Bless the congregation. सभा के लोगों को आशीष दे। Bless all those who are joined with us, Lord. हर एक जो इस वक्त हमारे साथ इस रीति से जुड़े हुए हैं, May your glorious light shine in the house. तेरी महिमामय रोशनी उनके घरों में चमकने पाए। Healing will come to their bodies. चंगाई उनके बीमार देहों पे आने पाए। Darkness will be broken. अंधकार टूट जाए। Demons run. दुष्टात्माएं निकल जाए। Peace शांति हो will come to their house. उनके घरों के अंदर। We pronounce peace to their house. हम उनके घरों में तेरी शांति को बोलते हैं। In Jesus' name.
यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank you for your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, Thank you for supporting the ministry too. और सेवकाई में आप जो सहयोग करते उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते In these difficult days, you have put in your offerings. हैं। इन कठिन God. समयों के अंदर आपने प्रभु को जो कुछ भी दिया है, May God return you 1,000-fold. परमेश्वर उसके बदले आपको 1000 गुना लौटा कर दे, Amen. आमीन। We sing one chorus, you can put the offering. और एक कोरस जब हम गाएं, इस दौरान अपनी भेंटों को आप एकत्रित कर सकते हैं। He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Ask a blessing on the offering, O God. प्रभु तेरी भेंट इसके ऊपर में तेरी आशीष को मांगते हैं। Those who gave, bless them. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे प्रभु। Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे प्रभु उन्हें भी आशीष दे, That we all together, Lord, might love you and serve you all the days of our life. ताकि हम सारे मिलकर अपने जीवन के अंतिम दिन तक तुझसे प्रेम कर सके, तेरी सेवा कर सके। Bless us all. हर एक को आशीष दे, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को कहते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।